heading of calculus 1. Yesterday we have done few of the examples, very important examples in the previous class. So we shall continue with the topic of maxima and minima. The name of the topic is maxima and minima. And related to that, we are to do the Lagrange's method. And this is the very important method which is we have to do. This is the Lagrange's method of multipliers. Lagrange's method of multipliers. This is we have to start today. This is very important method. And, let us use this method now in the numerical examples. The question is find the maximum and minimum value of the function x square plus y square subject to the condition. This is the condition we have. Now we will have this type of questions now, in which we have to find out the maximum and minimum value subject to a condition. Now this is also said to be a constraint. So this is the constraint we have. This is 3x square plus 4xy, 6y square minus 140 is equal to 0. So you will consider a Lagrange's functional that is named as capital Fxy, that will be equal to x square plus y square plus lambda time the constraint 3x square plus 4xy plus 6y square minus 140 is equal to 0. Now this is no need to take equal to 0, बस इतना ही बहुत है जिसका हमने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है प्लस लैम्डा टाइम कंस्ट्रेंट. Lambda is a constant of multiplier which is known as Lagrange's multiplier. Now for the extreme point और मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करना है. सो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस लैम्डा टाइम 6x plus 4y, and that will be substituted equal to 0. Similarly, derivative with respect to y, that is 2y plus lambda time 4x plus 12y is equal to 0. Now from these two equations, the first equation can be rewritten as x. Okay, you can take x common even. 2 can be cancelled throughout. 2 को कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट आ जाएंगे. That is like this, and name it as equation number 1. And similarly, we can find out the second equation, that is 2 lambda x and 1 plus 6 lambda into y is equal to 0. Name it as equation number 2. अब हमें पता है कि हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है. दिस इज इम्पोर्टेंट दैट वी नीड टू फाइंड आउट लैम्डा. और अब इन दोनों इक्वेशंस में x एंड y बोथ आर नॉन जीरो, क्योंकि अगर x भी जीरो हो गया y भी जीरो हो गया तो फंक्शनल ही जीरो हो जाएगा जिसकी हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. सो वो जीरो नहीं होने चाहिए. सिंस x एंड y बोथ आर नॉन जीरो, then we can find out the determinant of this. अगर नॉन जीरो है तो इनका कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, that is equal to 0. and now ये हम लोग कर रहे हैं for finding out the value of lambda. expand the determinant, expand कर देंगे तो आपके पास लैम्डा में इक्वेशन बन जाएगा. एंड दिस इक्वेशन विल बी 3 6 are 18 minus 4 14 lambda square plus 9 lambda plus 1 is equal to 0. ये इक्वेशन बनेगा हमारे पास लैम्डा में. और अगर हम, बिकॉज ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम लोग इसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं. दैट विल बी लाइक दिस. Now you will be able to find out the values. 81 minus 56, and that come out to be 25, and 25 का square root होएगा 5 upon 28. So the values are -1/2 and -1/7. ये दो values आ जाती हैं lambda की. This is important क्योंकि lambda की value, lambda एक multiplier constant है, तो lambda की वैल्यू से ही आपके पास इक्वेशंस बनेगा. सो व्हेन यू विल टेक lambda इज इक्वल टू -1/2, आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से आपके पास आ जाता है 1 -3/2 इंटू x माइनस y is equal to 0, and you can sort it out. It will be -x/2 minus y is equal to 0, और x will be equal to 2y नेगेटिव. ये वैल्यू आ जाती है. अब ये वैल्यू को आप कंस्ट्रेंट में भर सकते हैं. पुट इट इन द कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट को क्योंकि हमने नेम नहीं दिया है तो आप उसको नेम दे दीजिए इक्वेशन ए. सो you will use this value of x in A. So put x is equal to -2y in A. A में हम लोग पुट कर सकते हैं, और A में जब हम लोग इसको भरेंगे तो ये बन जाता है 12y² minus 8y² plus 6y² minus 140 is equal to 0. So y² come out to be 14. And what does it mean? You will be able to get from this equation. यहाँ से क्या आएगा? x² is equal to 4y². So that come out to be 15, 6, because y² की value 14 है. So from this x² is 56 and y² is 14. Now given functional क्या है? The given functional is x² plus y². You see, what is the value of x²? 56. The value of y² is 14. That come out to be 70. So this is one value of the given functional. Now you can also find out the other value by taking lambda is equal to -1/7. Now when you put it in the equation number 1, put in 1, and you will get 1 minus 3/7x minus 2/7y is equal to 0. That will be 4x minus 2y is equal to 0, and you will get y is equal to 2x from this equation. Now again you will use y equal to 2x in constraint. Put in a. कंस्ट्रेंट को हमने नाम ए इक्वेशन दिया है. जब आप इसको कंस्ट्रेंट में भरेंगे ये आ जाता है 3x², 8x² 24x² minus 140 is equal to 0. So what it come out to be 4x² is equal to this come out to be x² 24 plus 8 32 plus 3 35. x² is equal to 140 and x² is equal to 4. Now from this equation y² is equal to 4x², that will be 16. अब x² की वैल्यू 4 है और y² की वैल्यू 16 है. नाउ देन f of xy कितना बन जाता है? 20. अब 20 आया है और पहले 70 आया था, पर 20 और 70 में से it is clear the minimum value is 20 and the maximum value of the given functional is 70. तो ये एक मेथड है या तरीका है जिससे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं.
Now, let us do one more example. This is also Lagrange's method. We have to find out the minimum value of f, x square plus y square plus z square. तीन variables हैं x, y, z, subject to the condition x, y, z is equal to a cube. Now, it can be written like this: x, y, z minus a cube is equal to 0. Name it as number 1 and name it as number 2. Constraint को number 2 दे दिए. Now, we can write f. अगर आप चाहो तो इसको लग्रांजीज मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको पुराने मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं. तो पुराने मेथड में करने के लिए z की वैल्यू आई थी, यही है सर. वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में सर जो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखे थे ना सर. जी जी, ये वाला. ये सर वहां पे y का वैल्यू में x का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 होगा ना सर. नहीं बेटे, ये देखो ना, ये वाली इक्वेशन से आया स्क्वायर करके y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया ना. और स्क्वायरिंग कर रहे हैं सर. यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू लगाई 4 और 4 का 16 बन गया. ओके सर स्क्वायरिंग किया सर. हाँ, वो स्क्वायरिंग होना है ना, तभी y स्क्वायर आएगा ना. यस सर. और स्क्वायर इसलिए करना है क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आ गई. हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसलिए स्क्वायर करना है. ओके सर. गॉट इट. ओके, इसको हम लोग लग्रांजीज मेथड से भी कर सकते हैं, और पुराने वाले मेथड से करने का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप कंप्लीट करिएगा. यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल पाएंगे a क्यूब अपॉन एक्स वाई, और z की वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस a6 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. दैट्स इट. अब आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट कर देना है. ध्यान से देखिए, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके 0 पुट करके x और y की वैल्यू आ जाएगी. फिर हम लोग उसी तरह से चेक करेंगे कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है. दिस इज वी नीड टू डू. So let us find out derivative. This come out to be 2x. This is the first order derivative we have to get. That is 2a6 upon this is x cube y square equal to 0. x से डेरिवेटिव और y से डेरिवेटिव आएगा 2y minus 2a6 upon x square y cube is equal to 0. ये डेरिवेटिव करके आ जाता है आपके पास. और यू नो दैट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, 2 और 2 खत्म हो गया, ये बन गया x4 इज इक्वल टू a6 ओवर y स्क्वायर, ये बन गया. और एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक स्क्वायर हटा करके उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा a क्यूब अपॉन y, ये बन जाता है आपके पास. सिमिलरली यहां पर करेंगे तो वाई स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स, ये आपके पास बनेगा. नाउ लेट अस मूव फर्दर. ये जो आपके पास आया है दिस वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्यूब ओवर वाई. हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ना कि एक्स स्क्वायर की चाहिए. तो हम इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन को यूज करो, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है. पहली बार 2 और 2 खत्म कर दीजिए, a6 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू लगा सकते हैं. so you can substitute the value of x square in this, and you can get that that will be a cube, and sorry, this will come out to be y square. y स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधी y आ जाएगी, और y स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर की वैल्यू a क्यूब. यस, स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि ये जो y नीचे लगेगा ना, ऐसे होएगा, और एक y इसके साथ काट देंगे हम लोग,
तो अल्टीमेटली बन गया, अब ए क्यूब भी काट दीजिए तो बन गया ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आपके पास आ जाता है। और वाई स्क्वायर कर दिया, रख दीजिए, वाई स्क्वायर इंटू वाई, सॉरी इट कम आउट बी ए क्यूब क्योंकि 3 कटेगा, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई विल बी वाई क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। गॉट इट? Yes, sir. यस उस सर। तरह से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ओनली सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। और ये आपके पास बन जाता है। यहाँ पर इसको हम अगर ओपन करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये बनेगा लाइक दिस, ए वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों में से मल्टीप्लाई होकर के 0 दे रहा है, तो यहाँ तो ये 0 आएगा, या ये 0 आएगा, या दोनों 0 होंगे। लेकिन दूसरा तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है जी। क्यों नहीं 0 हो सकता? क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव हैं। तो ओनली पॉसिबिलिटी है यहाँ से कि y कम आउट टू बी ए। तो ये एक वैल्यू आपके पास आ जाता है y इक्वल टू ए। लेकिन y इक्वल टू ए अब आप यहाँ पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू ए है, और आपके पास बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए क्यूब ओवर ए, 1a इज कैंसल्ड, so x square is equal to plus minus a square. Got it? Yes, sir. अगर अगर ध्यान से देखिए, अगर हम x की वैल्यू स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या बनेगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर, ये बनेगा। और यहां से तो आ जाएगा प्लस माइनस ए, बट यहां से क्या आएगा? प्लस माइनस एओटा ए। इमेजिनरी पॉइंट्स आएंगे यहां पर। जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात? Yes, यस sir. सर। बेटे इमेजिनरी पॉइंट्स आएंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि रियल में ही है, we should have real quantities for maxima and minima, so no need to discuss about this imaginary points. So you have x equal to plus minus a, and now stationary points are, अब x के दो वैल्यूज आ रही हैं, a और माइनस a, तो जब a आएगा, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि y की वैल्यू आपके पास a है, तो a के लिए a है, और सिमिलरली माइनस ए के लिए भी ए ही था, तो ये दो पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं। ओके Yes, sir. ओके यस सर। Yes, sir. जी जी। अब हमने ये तो था जब आपने बेटे पुट करा दिस वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्यूब ओवर वाई, पहली इक्वेशन को दूसरी में यूज करा, तब आपके पास ये चीज आया ना। ओके बेटे? Yes, sir. हाँ, लेकिन जब आप दूसरी इक्वेशन को दिस वन अगर आप इस वैल्यू को इसमें यूज करेंगे, इसमें, तो अब आपके पास पॉइंट्स डिफरेंट आते हैं, और आपके पास जो पॉइंट आते हैं, एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई वांट टू से, इसको हम दूसरे वे से अगर कहें सॉरी, आपने बेटे यहाँ पर आपके पास है दो वैल्यूज, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब ओवर वाई एंड माइनस ए क्यूब ओवर वाई, ये दो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव Yes, है एक नेगेटिव है। आपने यहाँ पर जो यूज करा वो पॉजिटिव वैल्यू यूज करा, ओके, पॉजिटिव वैल्यू आपने यूज करा ए क्यूब ओवर वाई। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वैल्यू के बजाय नेगेटिव वैल्यू यूज करें तो इसमें, इसकी बात कर रहा हूं, आपने इसमें यूज करा था ना, सुन रहे हैं आप बात? Yes, sir. जब Yes, आपने sir. पॉजिटिव वैल्यू यूज करा तो वो माइनस का माइनस ही रहा, लेकिन अगर मैं नेगेटिव वैल्यू यूज करूंगा तो वो माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। गॉट इट? तो वहां पर, यहां पर फिर आना चाहिए प्लस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, ये बनेगा।
और इसको अगर फर्दर मोर सिंप्लीफाई करें तो वो y क्यूब प्लस a क्यूब बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर फिर दोबारा से फॉर्मूला बनेगा y प्लस a इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर। यू कैन चेक इट, आई थिंक देयर शुड बी नेगेटिव साइन, देन ये सेटिस्फाई होएगा। और हमारे पास जो आ जाता है यहां से y की वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव ए की वैल्यू पॉसिबल है। तो जब हम y इक्वल टू नेगेटिव ए इसमें भरेंगे, अब नेगेटिव वैल्यू में भरना है आपने, तो इसीलिए इमेजिनरी वाला चक्कर नहीं आएगा। यहाँ इमेजिनरी वाला पार्ट जो मैंने डिस्कस करा ना, वो आप छोड़ ही सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव वाला डिस्कस ही ना करिए। ओके, सिर्फ प्लस वाला ही डिस्कस करेंगे आप लोग, समझ रहे बात? Yes, sir. वो Yes, नेगेटिव sir. वाला हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं दैट इज माइनस ए क्यूब ओवर वाई। So x square is equal to minus a cube over the value of y is negative a. So negative negative cancel. This is x square is equal to a square, and what it come out to be? This come out to be x equal to plus minus a. अब पॉइंट्स क्या आते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स आर y तो नेगेटिव a ही है, y is always नेगेटिव a इन दिस केस, और यहाँ x क्या है, एक बार a है दूसरी बार नेगेटिव है। अब चारों पॉइंट डिफरेंट है, 1 2 3 4, ऑल द 4 पॉइंट्स आर डिफरेंट। ओके, Yes. अब आपने 1 बाय 1 Yes, sir. वैल्यू चेक कर लेना है। पहला हम पॉइंट चेक करते हैं a और a, इसको नंबर 1 दे देते हैं। यू कैन आल्सो से इट एज केस नंबर 1, और केस नंबर 1 के लिए यू नो दैट व्हाट वी रिक्वायर R, we require S, and we require T. Can you complete it at home? Yes, sir. Yes, sir. One part I discuss one part here. Remaining parts you should complete it at home. So let us do that. We need to find out R, and what is R? The double order derivative of the given function with respect to x, and it come out to be 2 plus 6a square over x4 y square, and this should be del square f by del x del y, and that is 4a6 upon x cube y cube, and del square f by del y square, that is 2 plus 6a square upon x square y4। ये तीनों डेरिवेटिव्स आपके पास आ गए। अब हमने पॉइंट पुट करना है a और एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ r कम्स आउट टू बी 2 प्लस 6a स्क्वायर, और नीचे a4 और a स्क्वायर a6। सिमिलरली s कम आउट टू बी 4a6 अपॉन a3 और a3 a6। t comes out to be 2 plus 6a square and नीचे a6, and you should have r, and r comes out to be that is 2 plus 6 over a4, s is 4 because वो सीधी पावर कट जाती है। t comes out to be 2 plus 6 over a4। Now let us discuss. Now, this is after substituting the value. RT minus S square we have to calculate, and RT minus S square is okay. This is RT minus S square. This is 2 plus 6 over A4 into 2 plus 6 over A4 minus 4 square. So that will be a 2 plus 6 over a4 whole square minus 4 square. This is we have. This is a 16. Now
we have to check for this and what it come out to be. हमने कोई गड़बड़ कर दिया क्या? ए मूव होना चाहिए था. Del square f by del x square should be 2 minus or minus plus 3 2s are 6 x4 हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक गड़बड़ कर दी हमने. यहां पर आपका जो डेरिवेटिव है वहां a6 है. चेक कर लीजिए एक बार. एक बार देखिए यहाँ. Yes, sir. यहाँ a6 है. मेरे से गलती से यहाँ a स्क्वायर लिखा गया है. यहाँ भी a6 है. तो वो a6 और a6 आपके पास कट जाएगा. ये वाला कट जाएगा और ये a6 भी कट जाएगा. और यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो 8 बनेगी. 2 + 6 8 और यहाँ पर भी 8 बनेगा. और ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 8 और 8 बन जाएगा 64 - 16 और 64 - 16 इज 48 ग्रेटर देन 0. आल्सो इसके लिए अगर हमने देखना है r की वैल्यू कितनी आती है 8. r इज आल्सो ग्रेटर देन 0. जब rt - s² ग्रेटर देन 0 हो, वो तो ग्रेटर देन होना ही चाहिए. अगर rt - x² लेस देन 0 आ जाएगा तो वो नीदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा वाला केस बन जाता है. ये हमने डिस्कस करा हुआ है. और r ग्रेटर देन 0 साथ में हो तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है. Therefore AA is a point of minima and minimum value आपके पास जो आती है, the minimum value is you can substitute in the function and it come out to be the value is x² plus y² plus z². ये था फंक्शन आपके पास if you see. और फिर हमने वो पॉइंट पुट करा था एक्स वाई जेड. आपके पास ये बना था x² plus y² and the value of z² was substituted and it come out to a6 over x² y². बट पॉइंट कौन सा है a और a. इट मीन x की वैल्यू भी a, y की वैल्यू भी a. सो दिस इज a² plus a² plus a6 over a4. So that come out to be 3a². This is the value we have for this point. तो ये minimum value आ रही है for this point AA. And the remaining points you will check. You will check the remaining points for maxima and minima. किस point पर maximum value आ रही है, किस point पर minimum value आ रही है. You need to verify that and complete the question. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Any question you want to ask?